गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि इन द प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हार्डवेयर एंड टुडे द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, व्हाट आर सॉफ्टवेयर? द क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द programs and application which run inside the computer are called software. Software basically software are of two main categories. Software are divided into two major categories. First is system software and second is application software. First is system software and second is application software. So then we will see first the system software. What is system software? System software are the software which interacts the hardware and the application software that are useful to interaction of hardware and software. The very first software which is installed in the computer is called system software and it is an operating system. So then we will see system software is also divided into three main categories, which is operating system, language translator and third is utility software. There are three types of system software: operating system, language translator and utility software. Next we will see the operating system. What is operating system? You can see the operating system is commonly known as OS. In mobile we see the most popular operating system which is Android, but in computer the most popular operating system is Windows. Operating system are the programs that coordinate computer resources, provide an interface between users and the computer and run the application. Operating system are classified into another category. First is command line interface and second is graphical user interface. Command line interface, you can see the picture over here, the command prompt. It is also known as, commonly it is also known as DOS, disk operating system, DOS, in which you can see the black screen and over there and you can type all the commands to perform any function. And next is the graphical user interface. First we will talk about the command line interface. The example of the command line interface operating system are DOS, disk operating system, and second is Unix. There are two types of operating system in command line interface, DOS and Unix. आप देखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस में DOS एक एग्जांपल है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आपके कंप्यूटर पे भी है और हम लोग उसमें एक ब्लैक स्क्रीन होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, आइदर इट इज सी ड्राइव, डी ड्राइव, और उसमें डायरेक्टरी के अंदर में जाते हैं और यू नीड टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स व्हेन एवर यू यूज DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप काम कर रहे हैं उसमें तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स, आपको याद रखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एबल टू डू द वर्क इन DOS। द सेकेंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, आसान है, आदमी इसमें काम कर सकता है, यूजर इसको बहुत अच्छा से इंटरेक्ट कर रहता है, इजीली काम करता है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आइकन्स, मेन्यूज, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जो कि अपीयर होते हैं व्हेनेवर वी वांट, जब हम लोग को चाहिए वो मिलता है, हम लोग उसमें क्लोज कर सकते हैं। और कोई कंप्यूटर नया बिगिनर भी है सीखने वाला, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बहुत इजीली यूज कर पाता है। यू कैन सी ओवर देयर आर मेनी आइकन्स यूज्ड इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हियर यू कैन क्लोज इट, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इट। तो ये सब सारा चीज आपको अवेलेबल होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जब भी आप काम करते हैं। तो द एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज एंड लिनक्स। द मोस्ट पॉपुलर operating system in computer in this world is Windows. Windows is an operating system developed by Microsoft, the biggest, the largest, you can say,
the company of software, the Windows. And the second is Linux. Linux popularly used in mainframe computer. mainframe computer के अंदर में यूज किया जाता है लिनक्स को, और ये थोड़ा सा विंडोज से थोड़ा टफ होता है सीखना इसको. द नेक्स्ट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर. अब हम जैसे बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? अगर हम लोग कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम लैंग्वेज को अगर कंप्यूटर को समझाना है, जो कंप्यूटर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर वी वांट एन इंटरप्रेटर ओवर देयर, वहाँ पे हम लोग एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर का जरूरत पड़ता है which can translate the high level language, programming language in machine level language. जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं that is called high level language, for example C, C++, Java, whatever you can say. और उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी कोड्स में 0 और 1 की भाषा, जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें ट्रांसलेट करता है, उसको हम लोग इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर बोलते हैं. तो इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वही हम लोग जानेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर और इंटरप्रेटर. कंपाइलर का क्या काम है? वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, सेम एज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर भी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को. एक केवल मोटे तौर पे एक ही अंतर है कि कंपाइलर जो है वो पूरा प्रोग्राम को एक बार ट्रांसलेट करता है एंड इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है. इंटरप्रेटर जब भी किसी लैंग्वेज में यूज होता है तो उसका हर एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और उसमें एरर डिटेक्ट करता रहता है, लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एट वंस इंटरप्रेट करता है और ट्रांसलेट करता है, कंपाइल करता है. The next is utility software. Utility means the tools. आप देखते होंगे whenever you see a motorcycle named Splendor. आप स्प्लेंडर देखे होंगे, सब लोग देखा होगा हीरो होंडा स्प्लेंडर. उसमें आप देखेंगे कि उसके फ्यूल टैंक के नीचे एक छोटा सा ब्लैक रंग का बॉक्स होता है, वेयर रिटेन यूटिलिटी बॉक्स. जो यूटिलिटी का मतलब होता है उसके अंदर में देखेंगे, अगर उसको खोल के आपका नया बाइक और आपका उसको ढूंढेंगे उसमें क्या है, तो यू कैन फाइंड सम टूल्स आर देयर. आपका व्हील को खोलने का और कुछ स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर्स और आपका स्पार्क प्लग को खोलने का उसमें टूल्स मिलेगा. उसके अंदर कुछ बैंडेज, कुछ मेडिसिन भी आपको मिल सकता है. तो दिस ऑल आर यूटिलिटी. मीन्स जब भी हमारा बाइक को का कुछ ट्रबल आ जाएगा तो हम उसका यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं. इन सेम फैशन इन कंप्यूटर, whenever we found any problem in computer, we can resolve it by the help of the utility software. So there are 3 types of utility software. First is antivirus. Most very popular, the antivirus means आपके कंप्यूटर में किसी भी वायरस का अटैक, यानी आपका कंप्यूटर अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, अगर उसमें कुछ वायरस आ गया है, किसी अदर सोर्स से आपको उसके अंदर में कुछ हार्मफुल इफेक्ट करने वाला वायरस आ गया है, तो उसमें हम लोग एंटीवायरस के हेल्प से उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, उसको मार देते हैं या उसको ठीक कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एज नेम सजेस्ट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड अदर हार्मफुल प्रोग्राम. द नेक्स्ट इज सिस्टम टूल्स. सिस्टम टूल्स हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर पे. अगर स्टोरेज में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, स्टोरेज को हम लोग क्लीनिंग करते हैं रैंडमली, हम लोग उसको डीफ्रैगमेंट करते हैं, तो दिस आर द टूल्स यूज्ड इन सिस्टम टूल्स. ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. देन द लास्ट इज डिवाइस ड्राइवर. ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो हम लोग कभी भी कोई मशीन खरीद के लाते हैं, कोई प्रिंटर खरीद के लाते हैं, कोई हार्डवेयर डिवाइस, कोई प्रिंटर या कोई स्कैनर, कीबोर्ड, हर एक डिवाइस के साथ एक ड्राइवर मिलता है. हम लोग को ड्राइवर सॉफ्टवेयर मिलता है, एक सीडी मिलता है, जिसको रन कराने के बाद उसको डिटेक्ट करने लगता है. अगर हम एक्सटर्नल कोई भी पेरिफेरल डिवाइस ऐड करते हैं तो वी नीड टू रन द
ड्राइवर सॉफ्टवेयर वेयर। अगर हम लोग कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आया, अगर हमको ओएस को फिर से रीइंस्टॉल कराते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, देन अगेन वो डिवाइस ड्राइवर हमको डालना पड़ता है, तभी हमारा कंप्यूटर स्मूथली रन करता है। दिस इज द लास्ट थर्ड डिवाइस ड्राइवर विच इज यूज्ड इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम देखें सॉफ्टवेयर में दो टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सारा चीज आपको पता चल गया। अब द लास्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्पेसिफिक किसी काम के लिए बने हुए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है तो हम ये कर सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में डालेंगे। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको ज़रूरत के हिसाब से हम इंस्टॉल करते हैं आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मेरे कंप्यूटर में टैली का हमको अभी ज़रूरत है, हम अकाउंटिंग का काम करेंगे, वी नीड टू हैव द टैली, तो हम टैली को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं मेरा फ्रेंड भी टैली को यूज़ करेगा, क्योंकि वो अगर अकाउंट्स का काम नहीं करता है, वो अगर डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग करता है, कुछ प्रिंटिंग का काम करता है, तो he needs to have the Photoshop, CorelDRAW, PageMaker and etc. ये सब सॉफ्टवेयर उसके अंदर में होना चाहिए। तो दिस ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका जरूरत। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में एप्स भी बोलते हैं। यू कैन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप फॉर शॉर्ट इज सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर एन यूजर if the user interacting directly with a piece of it is application software. For example, अब एग्जाम्पल पे आते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर हम will be using Microsoft Word is it is an application software. Excel is also an application software. Tally, AutoCAD, CorelDRAW, PageMaker, Photoshop and many more application software are there. So that's all. Today we saw the software and their types, application software and system software. Very thanks to all of you for hearing me. Thanks a lot.